Hello everyone, again with you, Jasprit Swati. And who is with the name of Redmi? Please write your name or tell me your name. Who is with the name Redmi? So, again, we are continue with measure for measure. Just please tell me once, am I audible to you all? Yes, Anybody? sir. Okay. So, this is a problem play dealing with the problem of justice and corruption. Okay? And it is dedicated to King James I. Second thing is dedicated to King James I. James I. And the character of Duke in the play represents the King James I. Okay, this point is clear. And now come to the brief plot line. The plot is here. And here is a Duke of Venice, and his Lord Angelo, and he's about to marry Mariana. And here is another character named Claudio, Claudio. I'm spelling Angelo, Lord, Lord, Angelo, Angelo. The character of Mariana, Mariana, Mariana. Okay, and next character is Claudio, and Claudio is about to marry Juliet. Who is pregnant before marriage. Okay, and here is a sister Isabella. Okay, these are main characters. अब स्टोरी प्लॉट लाइन आप समझ लो. Duke give the charge of the dukedom to Lord Angelo, and by telling him that he's going for some pilgrimage, but he don't go for any pilgrimage, but disguised himself as a friar, as a friar.
named friar, that's sorry, just friar, not without any name. Okay, he was a priest. एक priest के रूप में उसने अपने आप को disguise कर लिया and he started observing his dukedom. And here there was some case, and Claudio was charged for murder of someone. The charge was completely false, but Angelo punished him falsely, that is death punishment. ठीक है, लॉर्ड एंजिलो ने फॉल्स अक्यूज क्लॉडियो को डेथ पनिशमेंट दिया, बट वो फॉल्स था और उसके फॉल्स अक्यूजेशन के बहुत सारे सबूत थे, फिर भी उसने कुछ भी ना मानते हुए उसे रॉन्ग पनिशमेंट दिया। इसाबेला बचाने के लिए लॉर्ड एंजिलो को रिक्वेस्ट की, एंड सो लॉर्ड एंजिलो ने उसको एक शर्त रखी दैट इसाबेला मस्ट कम टू लॉर्ड एंजिलो फॉर अ नाइट so that he will leave Claudio. And यहाँ पर एक और कहानी होती है, Mariana is becoming wife of Lord Angelo, and Lord Angelo ने ये मैरिज कैंसिल करने का डिसीजन लिया ड्यू टू डावरी। ओके, ड्यू टू डावरी उसने ये मैरिज कैंसिल करने का प्लान किया, और क्लॉडियो को छोड़ने के लिए इसाबेला से एक रात के लिए आने का जो है रिक्वेस्ट वो शर्त रखा। ये तभी इसी बीच इसाबेला बहुत परेशान थी, इसकी जो मुलाकात हो गई इस डिस्गाइज्ड ड्यूक से हो गई। ड्यूक आस्क्ड इसाबेला एवरीथिंग एंड इसाबेला टोल्ड द ड्यूक इन डिस्गाइज्ड एवरीथिंग ऑनेस्टली, एंड द ड्यूक in disguise Isabella and Mariana together make a plan, and Mariana was sent for a night in place of Isabella to Lord Angelo. And next day the Duke returned back and take the charge from Lord Angelo, and Lord Angelo was punished. He was left free out of the charge of death punishment, and ड्यूक मैरिज इसाबेला। ड्यूक ने इसाबेला से मैरिज कर ली, इसकी मैरिज यहाँ हो गई, इसकी मैरिज यहाँ हो गई। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द प्ले देयर वर 3 मैरिजेस, मैरिज ऑफ इसाबेला एंड ड्यूक ऑफ वेनिस, लॉर्ड एंजिलो एंड मैरियाना, क्लॉडियो एंड जूलियट। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ प्लॉट लाइन ऑफ द प्ले, एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसे आप नोट कर लें, दैट इज रिलेटेड टू द टाइटल मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर इज द टाइटल टेकन फ्रॉम वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रीवियस प्ले, दैट इज हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 के एक्ट, एक मिनट, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 के एक्ट 2 सीन 6। ओके, यहीं पर आप लिख लें एक्ट 2 सीन 6। यहां पर ये जो है शेक्सपियर ने ही मेजर फॉर मेजर फ्रेज यूज किया है, एंड ही टुक दिस फ्रेज फ्रॉम देयर। Okay, so I'm repeating this fact that the phrase measure for measure as title has been taken from William Shakespeare's previous play Henry VI Part 3 Act 2 Scene 6. Okay, so next play, that is Labor's Last. Very fantastic and very funny play.
love's labors last. Love's labors last is a play that deals with a king, princess, three lords, and three ladies with the prince. Okay, here is Ferdinand, Ferdinand. Ferdinand. He was the king of Navarre, Navarra, king of Navarre. Okay, and he has three lords: uh, Lord Brown, Brown, Lord Longvelly, Longvelly, Lord Dumaine, Dumaine. Okay, these were three lords, and there was Princess of France, Princess of France, Princess of France, and there were three ladies: Rosalind, Rosaline, Rosalind, Maria, and Catherine, Catherine, Catherine. Okay, and here is another character of the related subplot, that is Don Armado. Don Armado. Armedo. Don Armado. And here is a clown named Custard, and who is in love with a prostitute named Jaquenetta. Jaquenetta. Jaquenetta was a prostitute. Okay, so understand the plot line. The King Ferdinand, along with his three lords, decided to observe a fast for 3 years, and they decided not to see, not to meet any female, any ladies. But just as they take the oath, the princess of France reached there, and the message came. So they were given place and welcomed, and at last, finally, when they see all these four and suddenly fall in love with one to one at once. Means the King Ferdinand fall in love with Princess, Lord Brown love with Rosalind, and Lord Longvelly fall in love with Maria, and Lord Dumaine fall in love with Catherine. And Lord Armado was already in love with Jaquenetta, the prostitute. But none of them was revealing their love to anyone else.
They were having the secret of love to oneself only. But Don Armado write a letter to Jacquinita and gave to the clown Castard. But Castard gives the letter to Rosalind and the matter disclosed, and at that point all of them reveals their love to their loved ones and to each other. But at the last moment when they reveal their love, uh, Princess of France received a letter from a messenger that her father has called her back. So all the four ladies went back to France, and all the labor, all the effort of these four lovers was of no use, means lost. ओके, ये थी कहानी कि चारों ने पहले ओथ ली कि फीमेल से मिलेंगे नहीं, बट प्रिंसेस आ गई उसी टाइम, तीन लेडीज आ गई एंड दे फॉल इन लव विद देम। उन्होंने लास्टली अपना लव एक्सप्रेस किया, और वो जितना पूरा एंडेवर था वो सबका सब लॉस्ट हो गया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंसेस रिसीव्ड द लेटर एंड ऑल दे वेंट बैक टू फ्रांस। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। Okay, and now next play, Timon of Athens. This is also a problem play, we can say that this is also a problem, and here is the motto, that tit for tat. The complete title of Timon of Athens is The Life of Timon of Athens. I am spelling Timon of Athens, Timon, Timon of Athens, Athens, Timon of Athens. Okay? Kalyani, are you getting my points? Any problem? So, I was. Yes, I sir. Okay, okay. So, Thank you, sir. I was telling the complete title. The complete title of the play is The Life of Timon of Athens. The life of Timon of Athens. Okay, ये complete title है, simply known as Timon of Athens. And here in this play, there is a phrase salad days, that refers to Queen Elizabeth. Okay, Queen Elizabeth first, not second, refers to Queen Elizabeth first. Sir, please repeat the phrase. Okay, salad days, SALED, salad days, DAYS, means young age. Salad days means young age. Yes, sir. Thank you, sir. Young age, youth age. Okay. And it is thought that it was written in collaboration. देखिए ये बात श्योर नहीं है, ये ऐसा माना जाता है, it is thought that written in collaboration with
collaboration with Thomas Middleton. Middleton. Thomas Middleton. Okay. Here is a device of invective. Device of invective. So, invective. Invective. Device of invective. It is a device of invective is criticizing someone. Criticizing someone by using dignified words. By using dignified words. मीन्स जब हम अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके, प्रेजिंग वर्ड्स का यूज करके किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे इन्विक्टिव कहते हैं. And here in this play, William Shakespeare has used the device of invective. Okay? And the motto of the play is, as I have told you earlier, that is tit for tat. Tit for tat. This is the motto. Tit for tat is the motto of this play. Okay, so I am telling you the plot in very brief. Here, Timon was a wealthy person and very amiable fellow of Athens, and he has several friends when he has money, and always he gave best treats and parties to their friends, and but by the passing of time, Timon became very poor. He lost all his money, and when he lost all his money, uh, he was left with no friend. उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे छोड़ करके चले गए. जैसे जैसे उसके पास पैसा खर्च होता गया, जब तक लोग थे, जब तक पैसा था उसके पास, तब तक तो उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे. बट व्हेन उसके पास पैसा नहीं रहा, देन जो है उसको उसके फ्रेंड्स भी छोड़ करके चले गए. और लास्टली उसने एक दिन डिसाइड क्या किया कि ही विल टीच ऑल देम अ लेसन. वो सबको एक पाठ पढ़ाएगा, एक लेसन सिखाएगा. लेसन क्या था? ही इनवाइट्स ऑल देम फॉर अ डिनर. उसने सभी को डिनर के लिए बुलाया, एंड put some grasses, stones and bricks in bowls and उन्हें ढक दिया. ठीक है, बाउल्स में रख करके ये सारी चीजें, घास, पत्ते, ईंट, पत्थर, टुकड़े, ये सारे जो है उस बर्तनों में, खाने के बर्तनों में रख रख करके ढक दिया. और जब सब अपने प्लेस पर आए, खाने के लिए आए, देन सबने जब बर्तन खोला तो सबके सब बड़े डिसअपॉइंट हुए, और उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसा ये ट्रीट है, कैसा लंच है, हाउ वी कैन ईट दिस, कैसे हम खा सकते हैं. देन टेमन ने कहा कि व्हेन आई हैव लॉट ऑफ मनी, व्हेन आई हैव एवरीथिंग, जब मेरे पास सब कुछ था, तब तो तुम लोग हमारे साथ थे और उसे एंजॉय किया. नाउ आई हैव दिस मच, आई हैव दिस ओनली, एंड सो नाउ एंजॉय दिस. तो इसका मोटो क्या था? टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा. और ये ब्रीफ प्लॉट लाइन है. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट प्ले. All Well That Ends Well. All Well That Ends Well is a story of a girl who is in love with a courtier. The girl name is Helena. Okay, the girl is Helena, Helena.
Okay, the girl is Helena, who is a daughter of a doctor. Daughter of a doctor. Okay, जो एक डॉक्टर की डॉटर है और इन लव विद अ कोर्टियर, इन लव विद अ कोर्टियर. ओके, जो कि एक कोर्टियर से लव करती है, बट द कोर्टियर डोंट वांट टू मैरी हर. सो एक दिन हुआ क्या कि किंग जो था वो बीमार पड़ा और उसे कोई ठीक करने वाला नहीं था. देन शी केम टू द किंग एंड सेड दैट कि शी कैन मेक किंग वेल, वो राजा को ठीक कर सकती है. तो लोगों ने कहा कि अगर नहीं कर सकी तो यू विल बी पनिश्ड विद डेथ पनिशमेंट. अगर वो ठीक ना कर सकी तो उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगा. उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर किंग सही हो गया, देन द कोर्टियर whom she loves will marry her. वो उसे मैरिज करेगा. सो तो वो जो है उसे किंग को सही करती है और फाइनली जो कोर्टियर है उसे मैरिज करनी पड़ती है, लेकिन वो किसी काम से बाहर जाता है, उसके साथ डिसीव करता है, मतलब उसको धोखा देता है, दूसरे से शादी करता है, लेकिन फिर से फाइनली एट द एंड शी बिकम लॉयल टू हेलेना एंड ऑल वेल दैट एंड्स वेल. सब कुछ अच्छा होता है अगर अंत अच्छा हो, अंत भला तो सब भला. एंड में वो वापस हेलेना के पास सेफली लौट करके आता है एंड बिकेम लॉयल टू हेलेना. ओके, अब इसका जो सोर्स है, सोर्स आप इसका जरूर नोट कर लें. सोर्स इज बर्केसियोस द डेकामेरॉन. BOCASS double C, BOCCASSIO, Bocassius Decameron, DECAMERON, डेकामेरॉन. यहां से उन्होंने ये स्टोरी ली और उसे अपने प्ले में यूज किया है. ओके, सो इस प्ले में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ओनली स्टोरी, प्लॉट लाइन, एंड नेक्स्ट इज हेनरी एट्थ. हेनरी एट्थ में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 पॉइंट नोट कर लें, ओनली 2 पॉइंट्स. One is that this is the only incomplete play by William Shakespeare. Henry VIII is only incomplete play by William Shakespeare. Are you getting my point? I'm not writing it on a screen. I'm repeating it again. This is the only incomplete play by William Shakespeare. It is so because, ऐसा इसलिए लिखा विलियम शेक्सपियर ने पूरा था, बट ये पूरा नहीं मिलता है. उसका एक रीजन है, बिकॉज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ, आई एम अगेन रिपीटिंग, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ, द ग्लोब थिएटर caught fire and burnt down. The Globe Theatre caught fire and burnt down due to a cannon shot. एक कैनन शॉट हुआ जिसकी वजह से ग्लोब थिएटर जल गया था, एंड जो इसकी बुक थी, जो इसका स्क्रिप्ट था, वो भी उसी आग में थिएटर में रखा था, जल गया. ओके, दैट्स व्हाई ये पूरा कंप्लीट आज नहीं मिलता है. और यही 2 पॉइंट्स हैं इसमें, दैट इज
कि एक तो ये इनकम्प्लीट प्ले है, सेकंड इज दैट कि इसे इसके परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी ड्यू टू अ कैनन स्पॉट। ओके, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज कोरियोलानस। दो तीन चार, ओके, इंक्लूडिंग कोरियोलानस 5 प्लेज थोड़ा सा अभी बच रहे हैं, तो इनमें मुझे लगता है कि अभी अबाउट हाफ एन आवर लग जाएगा। ठीक है, सो इसे हम लोग कल करेंगे। अब टारगेट तो जरूर था खत्म करने का, लेकिन नहीं हो पाया। देन कल हम लोग ये 5 प्लेज ब्रीफ में खत्म करके कुछ एक पॉइंट्स हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, उसे भी लिख लेंगे। देयर आफ्टर हम लोग जैकोबियन ड्रामा पर मूव करेंगे। सो अभी हम लोग इसको यहीं पर लीव करते हैं। ठीक है, कोरियोलानस पे यस, एनी मैसेज? गुलशन, ओके गुलशन, ठीक है। तो कोरियोलानस है अभी हम लोगों को पढ़ना। विल डू इट टुमारो, यस। आई एम टेलिंग यू कि हम लोगों को कल क्या क्या करना है। कोरियोलानस करना है, कोरियोलानस, पेरिक्लीज, विंटर्स टेल, मच अडू अबाउट नथिंग एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये 5 प्लेज हैं। ठीक है, इन्हें हम टुमारो करेंगे। एंड ये आपके सामने कोरियोलानस एंड पेरिक्लीज, विंटर्स टेल, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। thereafter शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके विषय में हम लोग इसको करके शेक्सपियर को कल खत्म करेंगे। ओके, अगर एनी क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास इस सेशन में बचे हैं 7 मिनट, तो आप इन 7 मिनट में अपने क्वेश्चंस पूछ लें। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे व्हाट्सएप खुला रहेगा। और इंफॉर्मेशन एक है जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। आज डेट हो गई 9 जून। आपके पास फ्री डेमो का जो टाइम है वो है कल और परसों का, मीन्स 10th एंड 11th। मीन्स जो फ्री डेमो वाले हैं वो विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट करके बेन जॉनसन और जैकोबियन ड्रामा बिगिन कर लेंगे। आई होप कि आप अभी तक ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जो एडमिशन ले चुके हैं उन्होंने बहुत अर्ली जो है डिसाइड कर लिया, विद इन 3 days डिसाइड कर लिया। ठीक है, जो लोग अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, मुझे लगता है कि आप अगर कंटिन्यू करना है तो डू इट सून। ठीक है, जिससे हमें चीजें डिसाइड करने में इजी होंगी कि कैसे आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे कंटिन्यू करना है। और जो नोट्स हैं, अभी कल स्वाति ने शायद पूछा था कि अभी नोट्स हमें देने हैं उस पे, दैट इज मुझे लगता है कोट्स पर। एक नोट्स आपको हम देंगे कोट्स पर, दूसरा एक देना है वर्क्स एंड राइटर्स की लिस्ट। मीन्स जो राइटर और वर्क पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट हमें देनी है। तो लिस्ट तो अभी मैं लिख रहा हूँ, और जो कोट्स हैं वो कोट्स ऑलमोस्ट मोस्ट मेरे पास कंप्लीट हैं, और बस एक बार उसको एडिट करना है। मैं एडिट करके आपको वो मिल जाएगा बाई 11th और 12th। लेकिन मुझे लगता है कि वो आप तक डिलीवर तभी होगा जब ये फ्री डेमो सेशन खत्म हो जाएगा। आफ्टर फ्री डेमो सेशन ही वो मिलेगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ये जो पीपीटी है, अगर ये किसी दिन का छूट जाता है वो हमें प्लीज रिमाइंड कर दिया करिए, क्योंकि मैं भूलता बहुत हूँ। ठीक है, ऑडियोज आज भी मैं क्लास के बाद डाल दूंगा। आज का 3 सेशन रिकॉर्ड हुआ है। सो
अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करिए, अदरवाइज वी शुड स्टॉप दिस सेशन नाउ. Please, I'm waiting for 30 seconds of your question or no question, so let's stop. Sir, I have no question. Okay, no question. So guys, all the best to you all. पढ़ते रहिए. एक चीज और रिपीट करता हूँ, पेपर 1 को इग्नोर मत करिए, कम से कम 2 घंटे 1 घंटे का टाइम पर डे पेपर 1 को दीजिए. ओके, Yes. so Yes, sir. I am ending this session here.